Hello everyone. Today we are going to discuss pesticides. Pesticides जो कि कॉम्प्लेक्स बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज है. Pesticides. Under the name pesticides are grouped a large number of chemicals which are used to suppress or eliminate undesirable organisms. ये पेस्टिसाइड्स वो ग्रुप है केमिकल्स का जो कि अनडिजायरेबल ऑर्गेनिजम्स को सप्रेस करता है या फिर एलिमिनेट करता है. मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर पॉइजनस सब्सटेंसेस कैपेबल ऑफ डैमेजिंग वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्रास्टिकली while causing known or only nominal changes to the desired one even if the two are in a close association. It is due to this property of exerting a selective toxic action on different species or group of species that these chemicals have acquired a very important role in modern society. पेस्टिसाइड्स जो कि हर तरह के पेस्ट को, जो कि इंसेक्ट पेस्ट, निमेटोड्स, रोटेंडोन, इन सबको जो है जितने भी तरह के पैथोजेंस होते हैं उनको या तो एलिमिनेट कर दें या फिर सप्रेस कर दें, वो कहलाते हैं, वो केमिकल्स कहलाते हैं पेस्टिसाइड्स. इन दिस endeavor to feed a rapidly growing population, man had to develop sophisticated technology for raising vegetables, fruits, cereals and livestock, of which the control of various pathogens, insects, pests, nematodes, rodents, etc. forms an integral part. In good old days, the problem was not so severe. Sprawling human establishments and practices of intensive agriculture have created additional resources for substances of various pathogens, insects, pests, etc. While the disturbed predator relationship in a drastically altered ecosystem was weakened or eliminated, the natural means of population regulation. The number of disease causing organisms and pestilent insects has been estimated to well over 8,600. Apart from a large number of species of fungi, ticks, mites and nematodes. A brief history of use of synthetic pesticides. सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स के यूज की एक ब्रीफ हिस्ट्री एक्सप्लेन करते हैं. The history of application of various substances to suppress or eliminate unwanted organisms. It's a long one. Most of the chemicals used earlier were simple inorganic preparations such as salt and mercury, copper and arsenic, और प्रोडक्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल origin. तो जो सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स की एक ब्रीफ हिस्ट्री जिसमें कि अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स को सप्रेस करने या एलिमिनेट करने के लिए वेरियस सब्सटेंसेस का एप्लीकेशन किया जाता है जो कि बहुत पुराने समय से इनका यूज होता चला आ रहा है. इसमें से कुछ इनऑर्गेनिक प्रिपरेशंस जैसे कि साल्ट, मरकरी, कॉपर, आर्सेनिक और बायोलॉजिकल ऑरिजिन के और भी प्रोडक्ट्स जो हैं यूज किए जाते हैं सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स के बनाने में. However, it was only after the
discovery of the remarkable insecticidal properties of DDT by Muller in 1933 that a chemical war has been waged against various insects, pests, and other undesirable organisms. The discovery of DDT was followed by many other synthetic pesticides that are decade followed the Second World War. Witnessed extensive use of DDT, aldrin, dieldrin, hexachlorobenzene, etc. In North America, Europe, and Japan, after which its application spread to other parts of the world. In India, also these insecticides were extensively applied to eliminate mosquitoes during the anti-malaria drive undertaken soon after the independence. DDT का जो यूज किया जाता है मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए, जो कि अब बैन हो चुका है। मलेरिया DDT का यूज अब हमारी कंट्री में बैन कर दिया गया है। नो डाउट दिस हैज़ curtailed losses caused by disease, insects and pests, but the damage caused to the environment has probably been higher than gains from the reduced pest means. तो DDT का यूज के साथ साथ उसके कुछ और भी जैसे एल्ड्रीन, डायल्ड्रीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन, इन सब का यूज जो है सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स के रूप में किया जाने लगा था सेकेंड वर्ल्ड वार के समय। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, जापान और इन सभी ने जो है पूरे वर्ल्ड में इनका एप्लीकेशन बहुत तेज़ी से फैल गया था। इंडिया जो था इंसेक्टिसाइड्स का यूज मॉस्किटोज वगैरह को एलिमिनेट करने के लिए किया गया, जो कि एंटी मलेरिया ड्राइवन के रूप में जाना गया। और इस तरह से जो है ये डिजीज़ जो है मलेरिया डिजीज़ को रोकने के लिए इस जो सिंथेटिक पेस्टिसाइड का यूज किया जाने लगा। दो देयर वेयर मैनी एपिसोड्स ऑफ पॉइजनिंग काज्ड बाई सिंथेटिक ऑर्गेनिक अर्लियर, जिनको कि मूर्ति ने 1986 में इट वाज ओनली इन 1962 टू पब्लिकेशन ऑफ रैचेल कार्सन्स बुक इंटाइटल्ड, उनकी बुक का नाम था द साइलेंट स्प्रिंग, विच बॉट द प्रॉब्लम ऑफ पेस्टिसाइड कंटामिनेशन टू पब्लिक अटेंशन। द बुक प्रेजेंटेड alarming picture of dangers of pesticide contamination। इनकी जो बुक थी साइलेंट स्प्रिंग पिक्चर ऑफ डेंजर्स ऑफ पेस्टिसाइड, ये जो इनकी बुक थी उन्होंने एक अलार्म था पेस्टिसाइड कंटामिनेशन जो कि इन्वायरमेंट में बहुत बुरी तरह से फैल रहा था, उसके डेंजर्स के रूप में, अलार्म के रूप में इन्होंने अपनी बुक को पब्लिश किया। तो द बुक प्रेजेंटेड अलार्मिंग पिक्चर ऑफ डेंजरस पेस्टिसाइड कंटामिनेशन इन द एनवायरनमेंट एंड रेस्ड मैनी कंट्रोवर्सीज। However, many of her productions have already become released।
predictions have already become realities. For instance, about 70% of the robin population of Hanover, New Hampshire died in 1963 as a consequence of DDT sprays on elm trees to check the Dutch elm disease. There has been a decline in the number of osprey and bird engaged along the eastern coast of the United States due to pesticide contamination. DDT reaches these birds though food in a much higher concentration because of biomagnification. It makes egg non-viable is the disturbed calcium metabolism in these birds causes the formation of eggs with fragile cells. इसको जो है पिकॉल ने 1970 में जो है बताया था कि इसके हायर कंसंट्रेशन से, जो पेस्टिसाइड्स है उसके हायर कंसंट्रेशन से जो है बर्ड्स में एग की जो सेल थी वो जो है उसकी फॉर्मेशन रुक जा रहा था, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो है डिस्टर्ब हो जाती है। इसको पिकॉल ने 1970 में बताया था, 1970 में। द साइंस एडवाइजरी कमिटी टू यूएस प्रेसिडेंट रिपोर्टेड इन 1967 that about 20 tons of DDT or its residue was contained in the bodies of people of United States alone. इसको साइंस एडवाइजरी कमेटी यूएस की जो थी उसके प्रेसिडेंट ने रिपोर्ट किया था 1967 में कि 20 टन्स ऑफ डीडीटी और उसके जो अवशेष थे उससे जो है बॉडी, लोगों की बॉडी में केवल अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में 20 टन्स जो हैं उसके उसमें कंटेन था, डीडीटी उसमें पाया गया। The total amount of DDT in the entire biosphere on this globe was estimated to be about 1 lakh billions था। Agriculture and industrial workers who are regularly exposed to DDT and other pesticides were found to possess 600 to 1000 ppm, 600 to 1000 ppm. ppm means parts per million of these chemicals in different tissues of their body. डीडीटी जो था उसकी पेस्टिसाइड, जो डीडीटी पेस्टिसाइड था वो जो था इसके केमिकल जो है टिश्यूज़ की जो बॉडी में थे वो 600 से लेकर के 1000 ppm तक बॉडी में केमिकल्स में पाए गए। ए पोस्ट मॉर्टेम मैक्सिमेशन ऑफ द बॉडीज ऑफ अनफॉर्चुनेट victims of pesticide toxicity in Hawaii revealed a variety of acronym and extensive focal और general pathology of liver. इसको जो है कैसरेट एटॉल ने 1968 में बताया था। In long run many pesticides may also cause genetic effects by damaging DNA मॉलिक्यूल्स। ये पेस्टिसाइड्स जो थे वो जेनेटिक इफ़ेक्ट्स भी डाल रहे थे, डीएनए मॉलिक्यूल्स को पूरी तरह से डैमेज कर देते थे। इसको निरंगी ने 1968 में बताया था। इन द फेस ऑफ एमंग पब्लिक डिमांड्स डीडीटी एप्लीकेशन वाज बैंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन द ईयर 1972। जब डीएनए मॉलिक्यूल को डैमेज करने और जेनेटिक इफ़ेक्ट को भी जेनेटिकली भी डिसऑर्डर उत्पन्न करने में ये पेस्टिसाइड
आ गया और ह्यूमन बीइंग में टॉक्सिक इफेक्ट डीडीटी का दिखाई देने लगा। तब जो है डीडीटी को एप्लीकेशन को यूनाइटेड स्टेट्स ने 1972 में पूरी तरह से बैन कर दिया। हमारी कंट्री में पहले भी बैन हो चुका है डीडीटी। हाउएवर इट्स यूज कंटिन्यूज इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज एंड टिल द ईयर 1981 AD about 4 billions of DDT had been used to control insect and insect-borne diseases on global scale। इसको जो है गोल्ड एट ऑल ने 1981 में बताया था कि DDT का यूज़ जो है 4 लाख बिलियन से भी अधिक जो है DDT को इंसेक्ट और इंसेक्ट बॉर्न डिजीजेज को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता था 1981 AD तक। इसके बाद आते हैं प्रॉब्लम्स क्या होता है पेस्टिसाइड्स का यूज करने में। प्रॉब्लम्स ऑफ एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। अभी तक हमने एक ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ी यूज ऑफ सिंथेटिक पेस्टिसाइड की, कि सिंथेटिक पेस्टिसाइड का कैसे यूज किया गया और उनको कैसे फिर डिजीज को कंट्रोल कर तो किया, लेकिन इसके साथ साथ टॉक्सिक इफेक्ट यानी कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी बढ़ता चला गया। इसलिए इस जो है सिंथेटिक पेस्टिसाइड डीडीटी इन सब का जो है बैन कर दिया गया है। अब इससे इनके यूज के प्रॉब्लम क्या होती है यूज पेस्टिसाइड का यूज करने में। पेस्टिसाइड्स आर यूनिक इन पोजीशन among toxic substances as they are deliberately added to suppress or eliminate some form of life. Under ideal conditions, the injuring actions should be highly specific and affect only the target organisms. जो इनमें आइडियल कंडीशन हो सकती है कि जो अनडिजायरेबल या टारगेट ऑर्गेनिजम्स हैं सिर्फ उनको ही अफेक्ट करें और उन ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हैं या डिजायरेबल हैं उन पर इनका किसी भी तरह का इफ़ेक्ट ना आए। द टॉक्सिसिटी शुड डिसअपियर आफ्टर द पर्पस ऑफ विच इट वाज अप्लाइड हैज़ बीन अचीव्ड। हाउएवर नोन ऑफ दीज फीचर्स आर मेट विद इन most of the pesticides which are in common use these days. This has made the use of these synthetic organics extremely hazardous pollutants of the environment and the biosphere. The use of synthetic pesticides has become a necessity in various branches of our economy. Past expanded human establishment, intensive agriculture and higher input rate of waste material into the environment have created additional resources for various insects, pests and other harmful pathogens to multiply. यानी कि सिंथेटिक पेस्टिसाइड का जो यूज किया जाता है उनकी जो जिसमें डीडीटी, हेक्साक्लोरोबेंजीन, एल्ड्रीन, डेल्ड्रीन इनका यूज जो है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, जापान इन सभी जगहों में बहुत पहले से अप्लाइड किया जाता रहा है और इसको जो है इंडिया में भी एक्सटेंसिवली जो है मॉस्किटोज को एलिमिनेट करने के लिए एंटी मलेरिया के रूप में यूज किया जाता रहा है। और इनको यूज करने में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इनसे जो है बायो मैग्निफिकेशन यानी इसकी टॉक्सिसिटी प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पर धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से कि इंडिया डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री सभी जगहों पर डीडीटी को बैन कर दिया गया है। और ये प्रॉब्लम ये पूरे विश्व में बायोस्फीयर में इस तरह की प्रॉब्लम है कि
This has made the use of these synthetic organics extremely hazardous pollutant of the environment and the biosphere. The use of synthetic pesticide has become necessary to various branches of our economy. तो पेस्टिसाइड्स तो हमारे लिए यूजफुल हैं, बट इनका जो है टॉक्सिक इफ़ेक्ट ह्यूमन बीइंग पर, प्लांट्स पर और हमारे बेनिफिशियल एनिमल्स पर भी पड़ते हैं इन केमिकल्स का। इसलिए जो है सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स में डीडीटी वगैरह को, जो कि बहुत ही हार्मफुल हैं, हाजर्ड्स हैं और पेस्टिसाइड पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, इसलिए इनको जो है अब बैन कर दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स। इन दिस टॉपिक we are affect the concentration of pesticides at different trophic level of ecosystem. Bioaccumulation refers to the increase in concentration of a pollutant in an organism. It usually occurs when an organism ingests a particular substance at a faster rate than it can metabolize or excrete. Bioaccumulation of environmental pollutants first gained public attention in the 1960s with the discovery of DDT and methyl mercury residue in fish and wildlife. नाउ बायो एक्यूमुलेशन जो होता है वो रिफ़र करता है कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स में किसी भी पॉल्यूटेंट या पेस्टिसाइड्स का कंसंट्रेशन जो है लगातार उसकी बॉडी में इंक्रीज होते जाना, वो कहलाता है बायो एक्यूमुलेशन. इट यूजुअली अकर्स व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट ए particular substance at a faster rate than it can metabolize or excrete. उसकी मेटाबॉलिज्म या मेटाबोलाइज होने की रेट से ज़्यादा फास्टर इन सब्सटेंसेस का जो है एक्यूमुलेशन होता है. while most organisms are contaminated as a result of consuming contaminated food. जब ये ऑर्गेनिजम्स कंटामिनेटेड फूड लेते हैं तो उनमें जो है उनकी बॉडी में जो है इन कंटामिनेटेड या पेस्टिसाइड्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं अधिक कंसंट्रेशन में, अधिक मात्रा में जो है वो एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं. एक्वेटिक स्पीसीज इन पर्टिकुलर एब्जॉर्ब कंटामिनेंट डायरेक्टली फ्रॉम द वाटर. जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो जो है लगातार जो है वाटर से डायरेक्ट इन कंटामिनेंट्स को या इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को जो है वाटर से डायरेक्टली लेते हैं. इट व्हाट इज नोन एज बायो कंसंट्रेशन. इसको कहते हैं बायो कंसंट्रेशन. एन एग्जाम्पल ऑफ बायो एक्यूमुलेशन विल बी फाइटोप्लैंक्टन्स एंड अदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स absorbing pollutants like lead, mercury and storing it in their tissues. जो ये पॉल्यूटेंट होते हैं जैसे कि लेड है, मरकरी है, ये जो पेस्टिसाइड्स जिनके थ्रू बनता है इसमें जो है इनके टिश्यूज में इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, फाइटोप्लैंक्टन्स के और अदर एक्वेटिक एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो है उनके टिश्यूज में जो है ये पॉल्यूटेंट्स जो हैं एक्यूमुलेट होते जाते हैं, स्टोर होते जाते हैं. बायो एक्यूमुलेशन, बायो कंसंट्रेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन आर डिस्टिंक्ट फिनोमिना. ये तीनों ही बायो एक्यूमुलेशन, बायो कंसंट्रेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन डिस्टिंक्ट फिनोमिना है. बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है? बायो एक्यूमुलेशन is the intake and accumulation of
a chemical in an organism by all routes of exposure, including transport across respiratory surfaces, dermal absorption and dietary absorption. बायो एक्यूमुलेशन, जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी या टिश्यूज में जो केमिकल्स जो होते हैं एक्यूमुलेट होते हैं ट्रांसपोर्ट के थ्रू, रेस्पिरेटरी सर्फेसेस के थ्रू, डर्मल एब्जॉर्प्शन के थ्रू एंड डाइटरी एब्जॉर्प्शन के थ्रू. बायो एक्यूमुलेशन इज द ग्रेजुअल एक्यूमुलेट्स ऑफ सब्सटेंसेस सच एज पेस्टिसाइड्स और अदर केमिकल्स इन एन ऑर्गेनिजम्स. बायो एक्यूमुलेशन जो होता है ग्रेजुअली एक्यूमुलेट होता है सब्सटेंसेस का, जो कि जैसे कि पेस्टिसाइड्स और अदर केमिकल्स जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स में एक्यूमुलेट होते जाते हैं. बायो एक्यूमुलेशन अकर्स व्हेन एन ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब ए सब्सटेंस एट ए रेट फास्टर दैन दैट एट विच द सब्सटेंस इज लॉस्ट बाई कैटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. बायो एक्यूमुलेशन की 3 मेन पॉइंट्स होते हैं. बायो एक्यूमुलेशन जो कि बॉडी में पेस्टिसाइड या अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस का जो है बॉडी के टिश्यूज में एक्यूमुलेशन होना, जो कि सभी तरह के ऑल रूट्स ऑफ एक्सपोजर जो होते हैं वो सभी तरीके से, जैसे रेस्पिरेटरी सर्फेसेस के थ्रू, डर्मल एब्जॉर्प्शन के थ्रू जो होते हैं बॉडी में डिपॉजिट होते हैं, एक्यूमुलेट होते जाते हैं. इसके 3 मेन पॉइंट्स होते हैं. फर्स्ट होता है बायो एक्यूमुलेशन इज़ द बिल्ड अप ऑफ केमिकल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. बायो एक्यूमुलेशन जो होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है केमिकल्स का बिल्डअप होना होता है. सेकेंड पॉइंट है द केमिकल एक्यूमुलेट्स बिकॉज इट डज नॉट ब्रेक डाउन ईजली. जो केमिकल्स बॉडी में या ऑर्गेनिजम्स के टिश्यूज में एक्यूमुलेट होते हैं वो जो है आसानी से उनका ब्रेक डाउन नहीं होता है. यानी हम कह सकते हैं डिकम्पोजर्स कैन नॉट ब्रेक देम डाउन. डिकम्पोजर्स जो होते हैं इन्हें ब्रेक करके डाउन नहीं कर पाते हैं. थर्ड पॉइंट होता है द केमिकल्स गेट स्टोर्ड इन फैट सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम्स. जो केमिकल्स होते हैं वो फैट सेल्स के ऑर्गेनिजम्स के फैट सेल्स में स्टोर हो जाते हैं और सीरियस प्रॉब्लम जो है बॉडी में, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो है वो कॉज करते हैं. इस तरह से बायो एक्यूमुलेशन जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, टिश्यूज में पॉल्यूटेंट जो होते हैं या फिर पेस्टिसाइड्स होते हैं, हार्मफुल पेस्टिसाइड्स, उनका एक्यूमुलेशन, उनका कंसंट्रेशन का बढ़ना ही, उनका कंसंट्रेशन बहुत अधिक मात्रा में उनकी बॉडी में स्टोर होना, एक्यूमुलेट होना ही बायो एक्यूमुलेशन कहलाता है. बायो एक्यूमुलेशन को हम मेजर करते हैं पार्ट्स पर मिलियन में. बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स. बायो मैग्निफिकेशन is the increase of toxic materials at each trophic level of a food chain. किसी भी फूड चेन में टॉक्सिक मटेरियल या पेस्टिसाइड्स या टॉक्सिक सब्सटेंसेस का प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पर बढ़ते चला जाना, उनका जो कंसंट्रेशन है बढ़ता जाना ही कहलाता है बायो मैग्निफिकेशन. इंडस्ट्रियल वेस्टेज contain toxic food chain industrial wastage contain toxic substances like arsenic, cadmium, lead, zinc, copper, mercury and cyanides, salts, acids and alkalis. ये सभी इंडस्ट्रियल वेस्टेज मटेरियल होते हैं जो कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, और जैसे आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, जिंक, कॉपर, मर्करी, साइनाइड्स, साल्ट्स, एसिड्स एंड एल्कलाइज. These days pesticides and biocides
are commonly used to kill pests and insects in orchards and crop fields। जो आज के युग में जो है पेस्टिसाइड और बायोसाइड्स का जो है हम कॉमनली यूज करते हैं पेस्ट और इंसेक्ट को किल करने में, जो कि हमारे ऑर्चर्ड में या क्रॉप फील्ड को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी कि टारगेट ऑर्गेनिजम्स को या फिर अनडिजायरेबल ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए हम इन पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज करते हैं। द पेस्टिसाइड्स यूज्ड फाइंड देयर वे इनटू द वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा। ये जो पेस्टिसाइड्स हैं जिनको कि हम क्रॉप फील्ड में या ऑर्चर्ड में यूज करते हैं, ये रेन वाटर के साथ या फिर अन्य उससे जो है हमारे वाटर बॉडीज जैसे कि पॉन्ड, रिवर्स वगैरह, लेक्स वगैरह में जा कर के मिलते हैं और वहाँ पर जो भी लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके फूड चेन के द्वारा ये जो है सभी तरह के ऑर्गेनिजम्स के अंदर पहुँच जाते हैं। वेयर दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द लोअर ऑर्गेनिजम्स एंड एंटर वेरियस फूड चेन्स। वो वाटर बॉडी में पहुंच करके लोअर ऑर्गेनिज्म में, फिर उनको फीड करने वाले ऑर्गेनिज्म में, फिर उनको फीड करने वाले, इस तरह से हायर ट्रॉफिक लेवल तक ये फूड चेन में पहुंच जाते हैं। एट एवरी स्टेज कंजप्शन ऑफ द पेस्टिसाइड्स इज इंक्रीज, यानी कि हर एक स्टेज पर जो है पेस्टिसाइड का कंजप्शन जो है बढ़ता चला जाता है। दिस इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस इनटू डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द फूड चेन इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और बायोमैग्निफिकेशन और बायोलॉजिकल एम्प्लीफिकेशन। यानी कि प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पर टॉक्सिक सब्सटेंसेस या पेस्टिसाइड्स इनका कंसंट्रेशन लगातार इंक्रीज होते जाना, वो फूड चेन में डिफरेंट मेंबर्स के फूड चेन में लगातार पेस्टिसाइड और टॉक्सिक सब्सटेंसेस का कंसंट्रेशन का इंक्रीज होते चले जाना ही बायोमैग्निफिकेशन या फिर बायोलॉजिकल एम्प्लीफिकेशन कहलाता है। इसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज दज ए कंटिन्यूअस इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए toxic material and pesticides at successive trophic levels in a food chain। यानी कि फूड चेन में प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पर बढ़ते हुए क्रम में पेस्टिसाइड और टॉक्सिक मटेरियल का कंसंट्रेशन कंटिन्यूअस इंक्रीज होते चला जाना ही कहलाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है DDT। For example, DDT after reaching a stream on river is absorbed by the microorganisms। जब ये DDT वगैरह पेस्टिसाइड्स जो हैं स्ट्रीम या रिवर में पहुंचते हैं तब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक पहुंच करते हैं और ऑन विच स्मॉलर फिशेस फीड। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फिशेस जो कि इनको खाते हैं उनके तक पहुंचते हैं। फ्रॉम देम DDT रीचेज द कार्निवोरस फिशेस। जब उन स्मॉल फिशेस को कार्निवोरस फिशेस खाते हैं तो DDT का एक्यूमुलेशन उसमें और भी ज़्यादा हो जाता है। सिंस बिगर फिशेस कंज्यूम more and more DDT accumulates in their body and it becomes unfit for human consumption। The same is true for mercury, which is used as a fungicide in cosmetics, caustic soda industry and paper mills। जब DDT जो होता है रिवर या पॉन्ड में पहुंचता है तो रिवर पॉन्ड में पहुंचने के बाद DDT जो वाटर में होता है उसका कंसंट्रेशन बहुत ही लोअर अगर है तो वो कंसंट्रेशन जब उसको जो है कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स उस वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं
तो डीडीटी का कंसंट्रेशन, जब अधिक मात्रा में वो वाटर को लेते हैं, डीडीटी का कंसंट्रेशन उसमें कुछ हद तक बढ़ता है। फिर उन फाइटोप्लैंक्टन्स को जब जू प्लैंक्टन्स फीड करते हैं तो जू प्लैंक्टन्स कई फाइटोप्लैंक्टन्स को खाएंगे, तो जितने फाइटोप्लैंक्टन्स के अंदर डीडीटी का एक्यूमुलेशन हुआ है उन सभी का कंसंट्रेशन जो है उस जू प्लैंक्टन्स के अंदर पहुंचेगा। तो जू प्लैंक्टन्स में फिगर से बताएं क्या, जब उन जू प्लैंक्टन्स को स्मॉल फिशेस फीड करते हैं तो कई जू प्लैंक्टन्स को खाते हैं तो उनके अंदर डीडीटी का कंसंट्रेशन और अधिक हो जाएगा। अब उन स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस फीड करते हैं तो कई स्मॉल फिशेस को फीड करेंगे, तब जो है लार्ज फिशेस में डीडीटी का कंसंट्रेशन और अधिक हो जाएगा। फिर उन लार्ज फिशेस को फिश ईटिंग बर्ड्स फीड करती हैं तो वो कई लार्ज फिशेस को फीड करेंगी तो उनके अंदर डीडीटी का कंसंट्रेशन और भी अधिक हो जाएगा। इसे हम इस फिगर के द्वारा समझते हैं। इस फिगर में हम देखते हैं बायोमैग्नीफिकेशन कैसे क्या होता है और कैसे बढ़ता जाता है। डीडीटी का कंसंट्रेशन वाटर में जो है सबसे पहले 0.003 ppm तक होता है। जब इस वाटर को फाइटोप्लैंक्टन यूज करते हैं तो उनके अंदर डीडीटी का कंसंट्रेशन बढ़ करके 0.03 ppm तक पहुंच जाता है। फिर कई फाइटोप्लैंक्टन्स को जू प्लैंक्टन्स फीड करते हैं, तो जू प्लैंक्टन्स चूँकि कई फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं तो सभी फाइटोप्लैंक्टन्स का कंसंट्रेशन उसकी बॉडी में आ जाता है। तो जू प्लैंक्टन में डीडीटी का कंसंट्रेशन बढ़कर 0.04 ppm तक हो जाता है। फिर जू प्लैंक्टन्स को स्मॉल फिशेस खाती है। स्मॉल फिशेस कई जू प्लैंक्टन्स को फीड करेंगी तो उनके अंदर डीडीटी का कंसंट्रेशन बढ़ करके 0.5 ppm तक हो जाता है। फिर इन स्मॉल फिशेस को लार्ज फिश फीड करती हैं तो एक लार्ज फिश कई स्मॉल फिश को फीड करेगी तो उसके अंदर डीडीटी का कंसंट्रेशन बढ़ करके 2 ppm तक पहुंच जाता है। फिर इन लार्ज फिशेस को फिश ईटिंग बर्ड्स फीड करती हैं तो इनमें डीडी चूँकि फिश ईटिंग बर्ड्स जो हैं कई लार्ज फिशेस को फीड करेंगी तो उनके अंदर डीडीटी का कंसंट्रेशन बढ़कर 25 ppm तक पहुंच जाता है। इससे हम देखते हैं कि प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पर डीडीटी का कंसंट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है। यानी वाटर में 0.003 ppm था और फिश ईटिंग बर्ड्स तक पहुँचते यानी कि हायर ट्रॉफिक लेवल पर पहुँचते डीडीटी का कंसंट्रेशन 25 ppm तक हो जाता है। यानी फूड चेन में या ट्रॉफिक लेवल प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पर कंसंट्रेशन का लगातार बढ़ते चला जाना ही कहलाता है बायोमैग्नीफिकेशन। और प्रत्येक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो है पॉल्यूटेंट या पेस्टिसाइड्स का एक्यूमुलेट होना, स्टोर होते जाना, ये कहलाता है बायो एक्यूमुलेशन। यदि हम डिफरेंस देखें कि बायो एक्यूमुलेशन एंड बायोमैग्नीफिकेशन में डिफरेंस क्या है तो बायो एक्यूमुलेशन देखिए, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए पॉल्यूटेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी पॉल्यूटेंट का प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में एक्यूमुलेशन कंसंट्रेशन का इंक्रीज होना ऑर्गेनिज्म में वो कहलाता है एक्यूमुलेशन। जैसे सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म सबसे स्मॉल फिशेस में, फिर उससे मीडियम फिशेस में, फिर लार्ज फिशेस में। तो ये लगातार ऑर्गेनिज्म की बॉडी में फिशेस की बॉडी में इन पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन का इंक्रीज होना। जैसे सबसे छोटी फिश जो है इसके अंदर जो पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन है वो बहुत कम होगा। कई सारे छोटे फिशेस को ये मीडियम फिश खाएगी तो इसके अंदर कंसंट्रेशन और अधिक होगा। फिर इन कई मीडियम फिशेस को जब लार्ज फिश खाएगी तो उसके अंदर जो है पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन और अधिक होगा। तो ऑर्गेनिज्म में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में पेस्टिसाइड या फिर पॉल्यूटेंट के कंसंट्रेशन का इंक्रीज होना, एक्यूमुलेशन का जो एक्यूमुलेशन इंक्रीज होता है, उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, वो कहलाता है बायो एक्यूमुलेशन। और
बायोमैग्निफिकेशन किसे कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन जो है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए पॉल्यूटेंट इन ए फूड चेन। किसी भी पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन लगातार फूड चेन में बढ़ते जाना, प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पर बढ़ते चला जाना पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन, वो कहलाता है बायोमैग्निफिकेशन। यानी अंतर क्या है? बायो एक्यूमुलेशन जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म में पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन का इंक्रीज होना है, और बायोमैग्निफिकेशन किसी भी फूड चेन में प्रत्येक लेवल पर पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन का इंक्रीज होना है। बायोमैग्निफिकेशन जो होता है Biomagnification refers to the increased concentration of pollutants as they move from one trophic level to the next. An example of biomagnification will be when small fish eat contaminated microorganisms and big fish eat the small fish. So first, the pollutants are transferred from microscopic organisms to the small fish that feed on them, and then to the big fish that feed on these small fish. As the burden of pollutants is passed from one organism to another, it gets amplified, and thus biomagnification is also known as bioamplification.